Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. आज हम पढ़ेंगे आपका 12th चैप्टर जो है adverbs. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Adverbs tell us more about a verb, adjective or another adverb. Look at the following pictures and read the sentences. पहला देखिए, Shally dance gracefully. Second है, Shiv lives here. Third देखिए, Karam swims fast. In the above sentences, dance, live and swim are verbs. The words gracefully, here and fast are describing verbs. These are called adverbs. Kinds of adverb. There are 6 kinds of adverbs. पहला देखिए, adverbs of manner. They show how an action is done, as Lata sang melodiously. The child slept soundly. He ran fast. इसी तरीके से दूसरा देखिए, adverbs of place. They show where an action is done, as the bird is inside the nest. It is raining here. Sit here. Third देखिए, adverb of time. They show when an action is done, as birds get up early. What is the time now? We go to school daily. Fourth देखिए, adverbs of number. They show how often an action is done, as we often go there. He came here once. We never saw a lion. Fifth देखिए, adverbs of degree. They show how much or to what extent a thing is done, as the tank is almost full. He was nearly exhausted. We are quite well here. The adverbs quite, very, extremely, almost, nearly or sometimes used with adjectives to add something to their meaning. These are also called adverbs of degree. Interrogative adverbs 6 टाइप है आपका, इसे देखिए. Interrogative adverbs are used for asking questions, as when did she sleep? How old are you? Why are you making a noise? Where is your mother? Formation of adverbs. A. Most adverbs are formed from adjectives by adding ly. Swift, swiftly. Wise, wisely. Lazy, lazily. Slow, slowly. Easy, easily. Brave, bravely. B देखिए, by changing spelling and adding ly. True, truly. स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग गलत दी है, TRUE लिखेंगे आप y की जगह, तो ट्रू का होगा ट्रूली. एंग्री, एंग्रीली. हैप्पी, हैप्पीली. आगे देखिए, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. पहला है, एडवर्ब्स एंडिंग इन ly form their comparative and superlative by putting more and most respectively before the positive form. यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 कॉलम्स दिए हैं आपको. पहला देखिए, ब्रेवली, मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली. रूडली, मोर रूडली, मोस्ट रूडली. नीटली, मोर नीटली, मोस्ट नीटली. ब्यूटिफुली, मोर ब्यूटिफुली, मोस्ट ब्यूटिफुली. एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली. बी देखिए, सिंगल सिलेबल एडवर्ब्स form their comparative by adding er and their superlative by adding est to the positive. Positive, comparative, superlative 3 columns हैं. Fast, faster, fastest. Soon, sooner, soonest. Near, nearer, nearest. Loud, louder, loudest. अब C देखिए, some adverbs change their degrees of comparison in an irregular way. Good, better, best. Far, farther, farthest. Little, less, least, much, more, most. So I hope students आपको
एडवर्ब समझ में आए होंगे। आइए एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, द एडवर्ब विच शोज हाउ एन एक्शन इज डन कॉल्ड, ऑप्शन से आपके एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे देखिए सेक्शन बी, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय अंडरलाइनिंग देम एंड देन टेल व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इज ईच बाय राइटिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। पहला देखिए, वॉक फॉरवर्ड एंड देन वॉक स्लोली। यहाँ पर फॉरवर्ड और स्लोली दोनों को ये पहले से हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पर बताया है कि स्लोली एक मैनर है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है शी रोट हर एक्सरसाइज नीटली। यहाँ पर नीटली को आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पर नीटली जो है किस तरीके से लिखा है, नीटली लिखा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आप साइड में लिखेंगे। थर्ड देखिए, ही सेल्डम कम्स हियर नाउ। यहाँ पर आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि हमें एक टाइम स्पैन बताया है कि वो कब आता है कब नहीं आता, इस तरीके से। बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव, कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको कंपैरेटिव डिग्रीज में करना है इसको डिवाइड। पहला देखिए, रमन केम डैश ऑफ ऑल। यहाँ पर अर्ली आपको वर्ड जो दिया है ब्रैकेट में उसको आपको यहाँ पर लगाना है। रमन केम अर्लीएस्ट ऑफ ऑल। इसी तरीके से सेकंड देखिए, ही केम डैश देन आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पर आपको फिर से एक अर्ली वर्ड ही दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे ही केम अर्लियर देन आई एक्सपेक्टेड। थर्ड देखिए, द फादर स्पोक डैश टू हिज सन। रूडली यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे द फादर स्पोक रूडली टू हिज सन। यहाँ पर आप सेम एज इट इज इस वर्ड को लिखेंगे। फोर्थ देखिए, आई ड्राइव द कार डैश। यहाँ पर केयरफुली वर्ड दिया गया है आपको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई ड्राइव द कार मोस्ट केयरफुली। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स। पहला देखिए, द लेटर इज डैश रिटन। यहाँ पर आपको लिखना है द लेटर इज नीटली रिटन। इसी तरीके से दूसरा देखिए, द रेन केम ऑन सडनली। यहाँ पर आप सडनली लिख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा देखिए, नेवर स्पोक अबाउट इट। यहाँ पर आप अबाउट इट लिख सकते हैं। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ मैनर से हम ये समझते हैं कि कोई चीज किस तरीके से की गई है, उसका क्या मैनर था करने का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब शो अस दैट द पर्टिकुलर थिंग इज डन एट व्हाट टाइम, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। थर्ड देखिए, डिफाइन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ प्लेस से हम ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ है, किस जगह पर हुआ है, प्लेस यानी कि कहां पर हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से हम क्या समझते हैं कि पर्टिकुलर चीज किस टाइम पर हुई है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब समझ में आए होंगे, उनके काइंड्स और उनके फॉर्म्स समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।